The Congress promised that the Pulwama terror attacks will not be politicized. For the first 72 hours, there was no talk of politics. Now, the Congress's chief national spokesperson Randeep Singh Surjewala has done a hard-hitting press conference hitting out at the Prime Minister and the BJP for trying to milk the Pulwama terror attacks to their political benefit. Joining us live on India Today television at this time, Chief National Spokesperson of the Congress Party Randeep Singh Surjewala, squaring off against him, National Spokesperson of the Bharatiya Janata Party Shahnawaz Hussain. Mr. Surjewala, Rahul Gandhi did a big press conference. It was much appreciated where he said that Pulwama will not be politicized. This is the time when the people of India stand with the armed forces, stand with the government, they stand as one, and there will be no politics over Pulwama. That consensus lasted only 72 hours. Today, in your press conference, you hit out at the BJP in a very strong fashion, making very clear that from now on, politics over Pulwama has well and truly begun. Mr. Surjewala, opening comments. Rahul ji, Shri Rahul Gandhi, Congress President, said 6 days ago, and I reiterate it today. Entire nation, including the Congress Party, stands united with our government and our armed forces in every decisive action that they will take to punish the Pak-sponsored terrorists and everybody else associated with the Pulwama terror attack. There are no two opinions on it. But the conduct of the Prime Minister is shocking, and questions must be asked thereupon. Please remember, Pulwama terror attack happened at 3:10 p.m. I saw the first flashes on India Today Aaj Tak. Congress Party reacted about it at 5 o'clock. But India's Prime Minister Shri Narendra Modi ji was doing film shooting up to 7 p.m. that day. He was doing a multi-cam shoot. Please see the picture on your camera now. The Prime Minister was enjoying boat rides, doing multi-cam shoots and looking at ghadials in Jim Corbett Park. Is this the conduct of a Prime Minister when he should have been chairing a cabinet committee on security to punish the perpetrators of Pulwama terror? He was instead doing what? He was acting like a Bollywood star, indulging in self-promotion. Is this the conduct of a Prime Minister who is responsible? And is this the conduct of a Prime Minister who calls himself nationalist? This is pseudo-nationalism at its worst. And the conduct is shameful. And that's why questions must be asked. Instead of chairing a cabinet committee on security, Modi ji, you are indulging in self-promotion by shooting for television films up to 7 o'clock. You are having chai nashta. You are indulging in sloganeering. You are having meetings instead of punishing the perpetrators of Pulwama terror attack. And those are the questions we ask. We also ask questions about the national security failure, as also the gross intelligence failure that happened, for which PM, the NSA, the Home Minister and the Defence Minister are responsible. There is government of BJP both in J&K through governor's rule as also in Delhi. Who is responsible? Modi ji used to ask, and let me remind you, because your channel used to show, he used to ask Manmohan Singh ji. So we ask him today, how did kilograms of RDX reach Jammu Kashmir? How did Mi-4 carbines as also rocket launchers reach Kashmir? How was a RDX laden vehicle permitted to come Nagar National Highway and ram into a bus where our Jawans were travelling? Why was specific intelligence input given by J&K police as early as on 8th February ignored with regard to convoy attack and IED explosive devices? Why were our Jawans not airlifted? 5 lakh rupees is what it would have cost them. Modi ji can spend 5,000 crore on publicity, 2,500 crore on his foreign travel, but he can't sanction 5 lakh rupee for airlifting of Jawans. These are questions that nation wants Prime Minister to answer. Mr. Surjewala, you know, one of the things you showed during your press conference was an image, apparently a selfie of KJ Alphonse, the Union Tourism Minister, at a martyr's funeral, where your allegation is he was taking a selfie. We reached out to Mr. Alphonse and we asked him about it.
He says, I am the son of a soldier. I understand and appreciate the sacrifices of Indian soldiers. I have never taken a selfie in my life. He is denying this. So you've leveled a very serious charge. If Alphonse was taking selfies, it is pathetic. He is denying it, saying that Rahulji. there are miscreants at work. He's written a letter to the Director General of Police in Kerala denying that he ever took a selfie. Mr. Surjewala. Rahul ji, the important question rather than Mr. Alphonse, is this also a selfie? Please, I'm showing this letter on the screen. This is the Prime Minister of India. When we were counting dead bodies of our Jawans, when we were counting body parts of our Jawans, when the entire nation was stunned, Prime Minister of India was doing this, doing a multi-com shoot like a Bollywood hero. Is he Salman Khan? Is he Shah Rukh Khan? Or is he Prime Minister of India? Prime Minister of India was taking part in Corbett Park in the channel, and this is how he was traveling in boats. This is how he was traveling in boats. And look at the National Working Committee member of the BJP, Sakshi Maharaj. He is there along with coffin of a Jawan. Is he doing a public rally, grinning away, showing his teeth and waving to the crowd? Or is he really remorsing for the sacrifice and martyrdom of our Jawans? I think these are questions that must be asked. And questions must be asked of the Prime Minister. And questions must be asked on the national security failure. Questions must also be asked on the gross intelligence failure that happened. Okay, let's take it one by one. You've leveled multiple charges, leading with charges against the Prime Minister. Let Shahnawaz Hussain respond to that. कि वो डिस्कवरी फिल्म की मल्टीकैम शूटिंग करा रहे थे जब पुलवामा में लोग हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो रहे थे. And there hasn't been a denial. There is a discovery shoot which was slotted in the Prime Minister's schedule at that moment. It wasn't cancelled, and if that's going on and the Prime Minister is doing boat rides, that seems highly inappropriate at a time when soldiers were killed at Pulwama. Shahnawaz Hussain, opening comments from the BJP spokesperson. देखिए ये पूरी तरह मुझे दुख है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की सियासत करेगी. कांग्रेस पार्टी ने जब ये हमला हो रहा था तब भी टेलीविज़न स्क्रीन पर हम लोग डिबेट में थे, मैं खुद डिबेट में था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा था कि शहादत की संख्या जो है वो बढ़ रही थी. तब भी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छाती नाप ली. हम लोग ये अपेक्षा करते थे कि वो इमरान खान की छाती नापेंगे. हमारे सैनिकों की जो छाती थी वो छलनी थी. उस वक्त सियासत शुरू हुई. बाद में दबाव बना तो राहुल गांधी जी ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा वो सरकार और सेना के साथ हैं. लेकिन मैं सुरजेवाला साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई टाइम बॉन्ड किया था? आपने कहा था 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 1 दिन. क्या आपको मालूम है कि जब पूरा देश आज सरकार और सेना के साथ है, विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार और सेना के साथ हैं, आप इतना जल्दी आप लोग आ गए सियासत पे? प्रधानमंत्री जी उस दिन दिल्ली में नहीं थे, ये बात सही है. प्रधानमंत्री जी मिनट टू मिनट उसको मॉनिटर किया, ये बात भी सही है. देश की रक्षा मंत्री देश के बाहर थी, वो लौटी, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई. प्रधानमंत्री ने मिनट टू मिनट वहाँ की स्थिति का आकलन किया. इंडिया टुडे चैनल पे ही उन्होंने एनएसए से बात की, उन्होंने गृह मंत्री से बात की, इसका फ्लैश आप दिखाते रहे. हमने ये संदेश दिया दुनिया को कि पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद भी जिस तरह 9/11 के बाद अमेरिका नहीं रुका, जिस तरह फ्रांस आतंकवादी हमले के बाद नहीं रुका, तो ये देश न रुकेगा न झुकेगा. तो हमने देश को रोका नहीं. So the counter from the Bharatiya Janata Party to the Congress, Mr. Surjewala, is that life cannot come to a halt. काम थोड़ी बंद हो सकता है. Life has to go on. If we put everything at a halt, then the terrorists win, and we can't let the terrorists win. Therefore, it's only to be appreciated and commended that the Prime Minister carried on business as usual. राहुल जी, खुद के प्रचार और प्रसार के लिए फिल्मों की शूटिंग करना, कपड़े बदल बदल कर, ये बिजनेस एज यूजुअल है. जब हम 40 जवानों के शरीर गिन रहे थे, शुक्रिया शाहनवाज साहब का कि उन्होंने ये बात स्वीकार की आज राष्ट्रीय टेलीविजन पर कि प्रधानमंत्री
बॉलीवुड फिल्म स्टार की भूमिका निभा रहे थे नहीं, ये- जब पूरा देश मातम और आतंक मना रहा था। नहीं, पूरे एकदम देश में गलत। तब नहीं, चूल्हा एकदम नहीं नहीं। जला। पर एकदम- प्रधानमंत्री जी राहुल कमल 7 जी, बजे राहुल- अपने नारे लगवा एक रहे मिनट मैं थे, बता दूं। नारे लगवा रहे थे और चाय नाश्ता उड़ा नहीं, रहे नहीं, थे। ये मैं गलत माफ है। कीजिए, मैंने सुरजेवाला साहब, शाहनवाज जी को मैं इज्जत करता हूं, आपकी बात को देखिए, मैंने मैं- टोका नहीं। राहुल ये मैं नहीं कह रहा, ये चाय नाश्ता जी, आप मुझे कर रहे जवाब देने थे देंगे, 7 बजे और वहां चाय नाश्ता उड़ा रहे थे और आप बोट राइड्स कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार के अंदर आपका मिनट टू मिनट प्रोग्राम छपा है। 6:45 पर आप फिल्म की शूटिंग करके निकलते हैं, उसके बाद आप रेस्ट हाउस जाते हैं, आप अपने नारे लगवाते हैं, आप वहां अभिवादन स्वीकार करते हैं, आप वहां चाय नाश्ता खाते हैं। कैसे चाय नाश्ता प्रधानमंत्री जी के गले से नीचे उतरा जब 40 जवानों के शरीर के टुकड़े, भारत माता का लहू चारों तरफ फैला हुआ था, जब कहीं चूल्हा नहीं जला? प्रश्न ये है, क्या ये बिजनेस एज यूजुअल है? ये शर्मनाक बात है। किसी भी प्रधानमंत्री को शर्मसार हो जाना चाहिए और पूरी सरकार को इस प्रकार के शर्मपूर्ण आचरण के Okay, counter from Shahnawaz Hussain. राहुल जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कभी इनके इल्जाम को पूरी तरह से खारिज करता हूं। देश के प्रधानमंत्री के ये कहना कि वो चाय नाश्ता कर रहे थे, आप लोग ये बता दें कि क्या सुरजेवाला साहब ने, राहुल गांधी जी ने अन्न और जल त्याग दिया था? कहां पर चाय नाश्ता करते हुए फोटो छाप दी इन्होंने? कहीं से भी प्रधानमंत्री ने कोई चाय नाश्ता नहीं किया, कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी के बारे में जितनी भी बात जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में कही जा रही है वो मिथ्या है, वो सत्य से परे है। मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। मैंने ये कहा कि आतंकवाद के बाद आज पाकिस्तान, सुरजेवाला जी ने एक सवाल नहीं उठाया, इन्होंने ये भी कहा कि कोरिया जा रहे हैं सैर सपाटा के लिए। इन्होंने कहा सऊदी क्राउन प्रिंस को बुलाया, तो क्या हम पूरे दुनिया को कह देते कि हम पाकिस्तान के हमले से इतने डरे हुए हैं कि सऊदी प्रिंस आप मत आइए? हम कोरिया को कह देते कि हम डर गए हैं पाकिस्तान के हमले से। कायर देश पाकिस्तान के हमले से हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, ये कहा। जहां तक प्रधानमंत्री के बारे में जितना भी इल्जाम है वो पूरी तरह गलत है। मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। ये इल्जाम तराशी का जो दौर शुरू किया है, मैं सुरजेवाला साहब से कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा से हैं, जो सैनिकों के बलिदान का प्रदेश है। आप कम से कम आज के दिन ऐसी सियासत मत कीजिए। आपको घेरना है तो पाकिस्तान को घेरिए, अपने देश की सरकार पर भरोसा कीजिए। Okay, Mr. Surjewala, आपने रुके और आपने अपने प्रधानमंत्री This को is the घेरना शुरू counter कर that दिया। at a ये time बहुत when we should be दुर्भाग्यपूर्ण है। focusing our energies आप on कह दीजिए countering कि आपने अन्न Pakistan जल त्याग दिया था। by attacking the Indian government and leading the attack against the Prime Minister, are you doing disservice to the Indian cause? 5 times in 4 days, the Prime Minister has openly said that the army has been given the green signal to strike at a time and place of its choosing, that the perpetrators of Pulwama will be punished for this dastardly attack. He said his piece. Now let the army do the job. The BJP's charge is, by turning this into a political battle, is the Congress harming the national security cause of this country? Mr. Surjewala. I think it is the pseudo-nationalists of the Bharatiya Janata Party, the self-proclaimed pseudo-nationalists who are harming the cause of the country. We said, and I reiterate again, please take action decisively. Whether our armed forces or our government, we will support both of them. But tell me, we must ask questions on the conduct of the Prime Minister and he is denying it. Let me read only 4 lines with your permission, Rahul ji. Sir. He says, उधर दिन भर कार्बेट पार्क का भ्रमण करने के बाद शाम 6:45 बजे प्रधानमंत्री का काफिला धनकड़ी गेट से निकला। प्रधानमंत्री रामनगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भी कुछ देर रुके और फिर चले गए। पीएम को डिकाला से धनकड़ी गेट पहुंचने पर अंधेरा हो गया। शाम 6:30 पर वह धनकड़ी गेट पहुंचे और 6:40 पर उनका काफिला गेट से बाहर निकला। धनगढ़ी गेट से जैसे ही काफिला बाहर निकला, स्थानीय लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया। उसके बाद वह रामनगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे और वहां रुककर चाय नाश्ता किया। दिस इज द कंडक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट्स शॉकिंग, इट्स शेमफुल। आई हैव नो अदर वर्ड्स।
We were counting body parts of our jawans, and our Prime Minister was shooting film like a Bollywood star. And more than that, he mentioned a visit of a visiting head of the state. All visiting heads of the state are welcome. But why could the Prime Minister not ask the Saudi prince the reason for gifting a $20 billion bounty to Pakistan and giving a clean chit to Pakistan on terrorism? Why could our Prime Minister not mention the terror sponsor Pakistan in the joint statement with the Saudi prince? And why could our Prime Minister not ask our friendly visiting head of the state as to how declaring Maulana Masood Azhar as a global terrorist, a politicization of UN listing, why did he in a joint statement with Pakistan reject India's demand for declaring Maulana Masood Azhar as a global terrorist? Okay. Are these questions relating to national security or opposed to national security? Mr. Hussain, the Because our Saudi Prime Arabian Minister question is weak need to ask these is questions. an important These questions question. must be asked on behalf of the nation. The Kingdom of Saudi Arabia is the principal economic benefactor of the Republic of Pakistan. $20 billion of investment have been promised. Each time Pakistan is in trouble, Saudi Arabia bails them out. The joint statement which was issued had no reference to terrorism emerging from Pakistani soil. In fact, when he was in Pakistan, the joint statement was rather anti-India, saying, no, don't press on terror, etc. It wasn't necessarily a pro-India statement, and yet the Prime Minister went out of his way, went to the technical airport in New Delhi and hugged the Saudi Crown Prince, when Saudi Arabia is the principal benefactor of the government of Pakistan. Shahnawaz Hussain. जी, पहली बात तो ये है कि हमारे मित्र रणदीप सुरजेवाला जी एक अखबार के रिपोर्टर की रिपोर्ट को कोट करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के चाय नाश्ते पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाय नहीं पीते हैं सुरजेवाला साहब। पहले तो आपको जानकारी दूं कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर रुके तो वो पूरी जानकारी के लिए वहाँ पर रुके, वो देश की जानकारी वहाँ ले रहे थे, वो व्यथित थे। अखबार के रिपोर्टर ने चाय नाश्ता लिख दिया, उसको कोट करके आपने प्रेस कर दिया, ये देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर रुके, आपने ये रेफर किया है और पूरा देश देख रहा था कि आप सब चैनल्स पे आ रहा था कि प्रधानमंत्री एनएसए से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ से लेकर सबसे बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर कौन पहुँच गया जो देखने लगा कि प्रधानमंत्री ने कितनी बिस्किट खाई और कितना चाय पिया। ये बातें आपने कही है, ये प्रधानमंत्री के लेवल चाय के पानी लिए नाश्ता से आगे बढ़ते ना, लेट्स डील विद द कंक्रीट फैक्ट्स हियर। सऊदी अरेबिया हमेशा मदद करता है पाकिस्तान की जब वो फंसे होते हैं। हम जाके इतनी दोस्ती कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से। अब चाय पानी नाश्ते को किनारे कीजिए, बोथ द गेस्ट, चाय पानी की बहस हो गई, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डील विद द रियल इश्यूज हियर। सर जब चाय पानी नाश्ता होगा तो उसका जवाब नहीं दूंगा, तो आपने कहा कि जवाब नहीं दिया, मैंने चाय पानी दे दिया। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। देखिए, सऊदी क्राउन प्रिंस जब यहाँ है, वो पाकिस्तान गए, पहले से शेड्यूल था। वहाँ उन्होंने क्या दिया, वो दो देशों के वो रिश्ते हैं। सऊदी अरब और भारत के रिश्ते बहुत इम्प्रूव हुए हैं। कल भी जब उन्होंने तकरीर की तो नरेंद्र मोदी जी को अपना बड़ा भाई कहा। मैं भी राष्ट्रपति भवन में वो डिनर जब उनके वक्त शाम के अंदर मैं मौजूद था, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी वहाँ पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई और भारत को अच्छा दोस्त बताया और टेररिज्म की निंदा की है, पुलवामा की भी निंदा की है। इसलिए ये भ्रम मत पैदा कीजिए कि टेररिज्म की निंदा सऊदी प्रिंस ने नहीं की, उन्होंने की, रिकॉर्ड पर है। और मुझे लगता है राहुल कमल जी आपको दिखाना चाहिए कि उन्होंने की है, क्योंकि आप एंकर की भूमिका में हैं, तो ये बात बताना चाहिए कि उन्होंने की है और मैंने आपके चैनल पे ही देखी है। दूसरी बात ये है कि भारत में भी सर जैश का कोई जिक्र नहीं है, टेररिज्म इमर्जिंग फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल का कोई जिक्र नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। सर मैं मेरी बात को पूरी करने दे, 30 सेकंड दे दें जी। भारत और पाकिस्तान में सऊदी अरब कोई बीच में नहीं है। हमारे दो पक्षीय रिश्ते हैं, सऊदी अरब से भी है, पाकिस्तान से, और हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वो हमारे लिए कोई मध्यस्थ बने या वो इंटरफेयर उसकी बात को करे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के क्या रिश्ते हैं, वो एक अलग रिश्ते हैं। चाइना पाकिस्तान के क्या रिश्ते हैं, वो अलग रिश्ते हैं। हमारे पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं वो हमारे अपने रिश्ते हैं और इस रिश्ते पर हमने कहा कि हमने MFN का दर्जा खत्म किया। हम पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे।
कांग्रेस से मेरी गुजारिश है कि आप देश के साथ जब आपने वादा किया, वचन दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम सरकार और सेना के साथ खड़े हैं, तो आपको खड़े रहना चाहिए। आपको इमरान खान पर बयान देना चाहिए, न कि अपने देश के प्रधानमंत्री को घेरना चाहिए। ये देश बहुत बुरा मानेगा। ये आप सेल्फ गोल कर रहे हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कह दिया था, उसको खून की दलाली कह दिया, उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। आज भी मेरी विनती है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर 71 में जिस तरह का साथ इंदिरा जी का दिया था, आज भी राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े रहना चाहिए। देश ये अपेक्षा आपसे करता है। आप राजनीति करना होगा, अन्य मुद्दों पर कीजिए, लेकिन पाकिस्तान जिन चीजों से बेनिफिशियरी होगा उस पर सियासत मत कीजिए। Okay. Now, Mr. Surjewala, two things. Rahul Gandhi has tweeted moments before now linking Pulwama to Rafale. That's point number one. Point number two is the BJP will say that what we are seeing right now is a more imaginative foreign policy. The Congress was very narrow-minded in imagining how powerful India in the modern day is. By trying to win the Saudi prince over, by trying to build economic linkages up to $100 billion with Saudi Arabia, we're trying to pull Saudi Arabia away from Pakistan's embrace. Yes, they are Pakistan's friends. We're trying to pull them away, and the way to do it is by building economic linkages. उनसे बैर करके क्या होगा? दोस्ती उनसे, हम भी दोस्ती करेंगे तो क्या पता वो प्रेशर डाले पाकिस्तान पे. That's the larger game plan the Modi government says is at play. राहुल जी, तीन बड़े सीधे सवाल हैं जो आपने भी पूछे, पर आदरणीय शाहनवाज जी ने उनका जवाब नहीं दिया। पहला सवाल ये है, कोई भी विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट आए उनका हम सम्मान करते हैं, पर क्या मोदी जी ने जो साझा बयान जारी किया विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट के साथ, उसमें पाकिस्तान का नाम लिखना क्यों भूल गए? क्यों घबरा गए मोदी जी? जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर का नाम उस साझे बयान में क्यों नहीं मिला? क्यों उस बात से भी घबरा गए? क्यों ये कहने से गुरेज कर गए मोदी जी उस साझे बयान में कि पाकिस्तान आतंक का पोषक है और जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान के अंदर पनाह लेते हैं और वहां की सेना, सरकार और आईएसआई के संरक्षण में ये आतंकवाद का नाग फलता फूलता है? Mr. Surjewala, the point that was being made, that the thinking within the BJP government is that by embracing the Saudi crown prince, you're trying to pull him away from Pakistan's embrace, which is better than letting them be locked in embrace and not doing anything about it. Mr. Surjewala. Rahul ji, as I said earlier, every visiting head of the state is welcome. That's been our tradition, as also our diplomatic process. The simple point here is the joint statement that was made by Modi ji and the visiting head of the state does not even mention the word Pakistan, much less sponsoring of terrorism by Pakistan. It does not even mention the word Jaish e Mohammed or Maulana Masood Azhar. Why does the statement not say that Pakistan is a perpetrator of terrorism, as also it permits its soil to be used by terror organizations like Jaish e Mohammed and Maulana Masood Azhar, who are stooges of Pakistan Army, Pakistan Deep State, as also Pakistan's ISI? Why is Modi ji reluctant to say so in a joint statement? The second question is, the truth is that the joint statement made by Pakistan and the visiting head of the state actually rebuffs India when it says that there can be no politicization of UN sanctions list in declaring someone a terrorist. Tell me, declaring a terrorist as a terrorist is politicization? Why could the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, on behalf of 130 crore Indians, not question the visiting head of the state and say, you are wrong? For declaration of Maulana Masood Azhar as a global terrorist is not politicization, but a corrective action. I think these are valid questions Mr. that must be Shahnawaz Hussain, asked I'll read to you of the Prime Minister. From this joint statement, both sides called upon all countries to renounce the use of terrorism as an instrument of state policy. किसी भी देश को terrorism as a state policy नहीं यूज करना चाहिए. कांग्रेस का कहना है कि आपने प्रेशर नहीं डाला, सऊदी अरेबिया के प्रिंस पर और प्रेशर डालना चाहिए था और मसूद अजहर के खिलाफ
पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बयान निकलवाना चाहिए था सऊदी अरेबिया से। देखिए राहुल जी, विदेश नीति के बारे में जब आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस आए, हमारा उनका एजेंडा सब कुछ तय था, पहले से ही प्रोग्राम तय था। और ये हमारे और सऊदी अरब का ज्वाइंट स्टेटमेंट है, ये हमारे और पाकिस्तान का ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं है। पहली बात, हमने टेररिज्म की उसमें निंदा की, उन्होंने भी निंदा की, इसको डाला। हमारा उनका ये विजिट सऊदी अरब और भारत के रिश्तों के बारे में था, न कि पाकिस्तान और भारत के रिश्तों के बारे में था। उसमें हम उनकी बातों को, जहां सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि इसी पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो वो पाकिस्तान पर चर्चा के लिए नहीं आए थे, द्विपक्षीय बातचीत थी। दूसरी बात, मैं सुरजेवाला साहब को अदब के साथ याद दिलाना चाहता हूं कि आप भूल गए कि शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ आपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहली बार आपने बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, भारत भी टेररिज्म को मदद नहीं करेगा, ये बात स्वीकार कर ली थी, जो आपके लिए बहुत बड़ा फेलियर था। हम लोगों ने उस वक्त इस मुद्दे को उठाया था। आप जब ज्वाइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान के साथ करते हो तो सेल्फ गोल भारत के लिए कर देते हो। और हमने सऊदी अरब से इस मुद्दे पर आतंकवाद की निंदा कराई, पुलवामा पर उन्होंने निंदा की। याद दिलाया शर्म अल शेख, द शेम ऑफ शर्म अल शेख, मिस्टर सुरजेवाला, मनमोहन सिंह going and mentioning Indian involvement in Balochistan. That was one of the biggest foreign policy debacles ever. And you're preaching to the BJP, he says, on what the Saudi prince hasn't said. Look at what you said about India being involved in destabilizing Balochistan, Mr. Surjewala. Rahul, this is how a meaningful debate is derailed by the Bharatiya Janata Party. If you have to question, then you should have also questioned Shahnawaz ji के देश के अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो बिन बुलाए मेहमान के तौर पर पाकिस्तान दावते उड़ाने गए और हमें रिटर्न गिफ्ट मिला पठानकोट एयरबेस पे हमला। और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जिन्होंने बदनाम आईएसआई जो जैश ए मोहम्मद के कर्ता धर्ता हैं उनको पठानकोट एयरबेस पे जांच के लिए बुलाया, यानी बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बुलाया। जो उग्रवाद के पोषक है आईएसआई पाकिस्तान की बदनाम, उन पर प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास था, उनको बुलाया पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए। परंतु आप मामले से फिर भटक गए हैं। मामला यह है कि अगर पुलवामा की चर्चा हो सकती है पैरा 37 में, तो यह भी हो सकता है कि पुलवामा का हमला जैश ए मोहम्मद ने किया, पुलवामा का हमला मौलाना मसूद अजहर उग्रवादी ने किया, और उस पूरे हमले के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पाकिस्तान है। उस पैरा 37 में यह क्यों नहीं लिखा जा सकता था जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर और पाकिस्तान का नाम, केवल इसलिए कि मोदी जी कमजोरी दिखा गए। मोदी जी एक विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट के सामने कमजोरी दिखाकर झुक गए, इसलिए यह बयान नहीं लिखा गया और इसीलिए उन्होंने सवाल नहीं पूछे। फाइनल वर्ड शाहनवाज हुसैन, अगर आपने याद दिलाया शर्म अल शेख का, तो इन्होंने याद दिलाया पठानकोट हवाई अड्डा, जहां पे तो आपने आईएसआई को बुलाया था। आप तो आईएसआई को इंडिया बुला रहे थे, बोलो देखो आप ही ने किया है, आप ही आके देख लो। आप ही पहुंच गए रायविंड, गले मिल रहे थे नवाज शरीफ से उस टाइम पे, केक खा रहे थे वहां पे, कहते हैं कांग्रेस पार्टी। नहीं, मैं हाँ, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी के लिए जितनी भी गालियां हैं उसमें एक गाली ये भी है कि कहा जाता है कि आप वहां चले गए और आपने वहां पर जाकर, नरेंद्र मोदी जी एक बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो बने थे तभी उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित बुलाया था और कहा था धमाकों की गूंज में बातचीत नहीं होगी। हमने पूरे दुनिया को संदेश दिया कि भारत एक बड़ा देश, उसने बड़ेपन में कोई कमी नहीं की। हमने मौका दिया जो पाकिस्तान ने गंवा दिया। और जहां तक आईएसआई के बुलाने का सवाल है, हमने पाकिस्तान के डेलीगेशन को बुलाया था। इस तरह की इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए कि उसमें कौन आया था। भारत में रॉ के लोग और पाकिस्तान की आर्मी के लोग अलग अलग एम्बेसी में अलग अलग तरीके से वो जाते हैं। आपको पता है कि जब भारत के जो अधिकारी जाते हैं, वो एक एम्बेसी में उनके अधिकारी रहते हैं, वो अलग अलग पोजीशन पे रहते हैं। लेकिन ये कहना कि हमने आईएसआई को बुलाया, ये गलत है। हमने किसी आईएसआई को नहीं बुलाया। दूसरी बात, शर्म अल शेख की बात के बाद आपने भारत को, पाकिस्तान को एक पड़ले में ला दिया था कि हम भी आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। वो शर्म अल शेख की घटना को आप नरेंद्र मोदी जी के विजिट से जोड़ेंगे, सही नहीं है। मैं एक फाइनल वर्ड कहना चाहता हूं, सुरजेवाला साहब, आपकी पार्टी
को अभी देश चाहता है कि वो सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। जो वचन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, आप इंतजार कीजिए, अपनी सरकार पर भरोसा कीजिए, अपनी सेना पर भरोसा कीजिए। सियासत थोड़े दिन किसी अन्य मुद्दों पर करेंगे। मैं जान रहा हूँ आज भी राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट करके सियासत करनी चाहिए, तो वो सियासत हम करेंगे, लेकिन इस पुलवामा का बदला जब देश लेगा उसमें कांग्रेस को वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर 71 में किया था। हमारी ये अपेक्षा है, अपने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित न करें। आपको इमरान खान पर फोकस करना चाहिए, उनको घेरना चाहिए, पाकिस्तान को घेरना चाहिए, अपनी सरकार को नहीं घेरना चाहिए। ह्यूमिलिएटिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि आप देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर रहे हैं और कांग्रेस को यह शोभा नहीं देता। हर चीज को इलेक्शन से मत जोड़िए। फाइनल वर्ड्स मिस्टर सुरजेवाला। राहुल जी, शायद वैसे तो शाहनवाज जी उन दिनों मंत्री थे, पर ये भूल जाते हैं कि 1999 में जब कारगिल हुआ तो पूरी कांग्रेस पार्टी और श्रीमती सोनिया गांधी एक स्वर में वाजपेयी जी की सरकार के साथ खड़ी थी। हमने इधर से उधर नहीं किया जब तक दुश्मन के दांत खट्टे हमारी सेना ने नहीं कर। इस देश की सेना पर हमें विश्वास है। शहनवाज जी ये भी भूल गए कि कांग्रेस की सरकार में ही 1947, 65 और 71 में कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही हमारी सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। 91,000 पाकिस्तान के सैनिकों को हमने सरेंडर करवाया था और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। एक बात और याद कर लें, जब मोदी जी बिन बुलाए मेहमान के तौर पर नवाज शरीफ जी के घर गए, पूरे देश का अपमान हुआ क्योंकि पाकिस्तान की फौज के जनरल ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करने से इनकार कर दिया। और आप झूठ कह रहे हैं शाहनवाज जी, पहली बार आप झूठ बोलते नहीं अक्सर, कि आईएसआई का डेलीगेशन नहीं बुलाया, डिप्लोमेट यहां से कोई उनके राजदूत से नहीं बुलाया था। मोदी जी ने बाकायदा आईएसआई का डेलीगेशन बुलाया था, आईएसआई को बुलाया था पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए, और वापस जाकर उन्होंने हम पर ही इल्जाम लगाया कि हमने अपने सैनिकों की खुद हत्या की थी। ये किया मोदी जी ने। और एक बात और समझ लीजिए कि 488 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं पिछले 5 साल में। 5,595 हमारी एलओसी का, हमारी सीमा का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। आपकी सरकार ने क्या किया? Okay, शाहनवाज जी, 20 seconds final counter. This has to be the final counter. ये तो पूरा चुनाव निकल जाएगा इसी बहस में। शाहनवाज जी, 20 seconds final counter. मैं राहुल जी, मैं सुरजेवाला साहब से कहता हूं कि हर बार आप हमारे सैनिक की शहादत याद दिलाते हैं, अपने सेना के पराक्रम को याद नहीं दिलाते। हमने 700 से ज्यादा टेररिस्ट मार दिए, हमने ऑल आउट कर दिया, हमने ऑल आउट ऑपरेशन 1 और 2 शुरू किया। अपने देश के सेना का मनोबल भी थोड़ा बढ़ाइए। और जहां तक सवाल है, हमने आईएसआई का कोई डेलीगेशन नहीं बुलाया। पाकिस्तान को कहा था या तो आप आओ और देखो कि आपके लोगों ने कैसी हरकत की। आईएसआई को कोई इनविटेशन नहीं था, ये मैंने झूठ नहीं बोला। मैं जिम्मेदारी से सुरजेवाला साहब ये कहता हूं, पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा, उसके अंदर कौन थे वो उनको तय करना था। हमने आईएसआई का डेलीगेशन नहीं बुलाया। So the BJP has spoken, the Congress has spoken. The politics over Pulwama is escalating. Of that there can be no mistake. Who is to blame? Is the opposition to blame? Is the government equally to blame? We leave it to you, our viewers. We never take sides in India Today. You've heard from the chief national spokesperson of the Congress. You've heard a counter from the Bharatiya Janata Party. You decide who you believe has the more compelling argument. Randeep Singh Surjewala, Shahnawaz Hussain, for joining us in India Today for this cracking debate. Thank you very much. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.